students, how are you all and how's everything going? I hope you all are doing perfect and enjoying your studies too. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is know your computer. So let's get started. A cash deposit machine, CDM, also known as Automated Deposit Cum Withdrawal Machine, ADWM, is a self-service terminal that allows customers to deposit cash directly into bank accounts. It operates using the input process output IPO cycle. Color the cash deposit machine CDM given below. So CDM मशीन जो होती है, जैसे ATM आप जाते हैं, आप उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं, आपको कैश मिलता है. CDM मशीन जो होती है, ये आपकी कैश डिपॉजिट मशीन होती है, जिसमें जाकर के आप किसी भी टाइम, चाहे बैंक खुला है, बंद है, इस मशीन पे आप अपना कैश जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं. आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी. आपका कैश जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जा कर के जमा हो जाएगा. सो दिस इज़ योर CDM मशीन, जिसे आप कलर करेंगे. नाउ फोकस ऑन how does a computer work, features and limitations of a computer, types of computers in other machines. So इस chapter में ये सारे topics हम cover करने वाले हैं. So let's start the topic or the chapter. The computer system can be defined as an electronic machine that is used to generate information from raw data. It performs various functions such as entering data, processing, storing data, presenting output on the screen. Today, computers are used in almost every field. A computer is dependent on human beings and cannot do anything by itself. It works according to the instructions given by the person operating it. So, computer system जो है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. ये आपके रॉ डाटास को लेती है, उसे प्रोसेस करती है, देन उसका रिजल्ट आपको देती है. आज का कंप्यूटर जो है वो हर एक फील्ड में यूज़ किए जाते हैं. आपको पता ही है, चाहे आप स्कूल चले जाओ, घर पे हो, या चाहे आप बैंक चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है. लेकिन ये कंप्यूटर जो है वो खुद से काम नहीं करता. इसको ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं. सो बेसिकली कंप्यूटर जो होते हैं वो ह्यूमन डिपेंडेंट होते हैं. Now, do you know the full form of computer is common oriented machine, particularly used for trade, education and research. तो अगर आपको कोई पूछे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर which is common oriented machine, particularly used for trade, education and research. So, how does a computer work? A computer work on the IPO, input process output cycle. ठीक है. Every computer does through the 3 stages as given below. हम इसे क्या देते हैं? डेटा देते हैं, जिसको ये प्रोसेस करता है. ठीक है. और फिर उसका आउटपुट आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलता है. अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं. First, we will discuss about input, the data and instructions which we enter into a keyboard. Using a keyboard or a mouse into a computer are called input. We can enter numbers, words, pictures or sounds. So जो भी आप नंबर, चाहे अल्फ़ाबेट अपने कीबोर्ड पे, ये देखिए कीबोर्ड पे जो भी आप टाइप करते हैं, ये दैट मीन्स आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को. ठीक है. इवन आप माउस भी अपने कंप्यूटर पे नेविगेट करते हैं, किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो दैट मीन्स आप कंप्यूटर को एक कमांड दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं. Processing. After entering the data instructions into computer, the CPU works on the input to give us meaningful information. This is called processing. अब जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, उसको CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है. ठीक है. इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं. Output, the meaningful information that we get after processing is known as output. अब जो भी उस रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, वो ही आपका आउटपुट कहलाता है. Now, features of a computer. The characteristics of the computer system are as follows. Speed. Computer can work very fast. It is a very high speed.
इट कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड। स्पीड इसकी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। आप अगर इसको कैलकुलेशन करने को बोलोगे तो विद इन सेकेंड्स ही आपकी कैलकुलेशन आपको करके देता है। डिलीजेंस, इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। ह्यूमंस की तरह थकता नहीं है। रिलायबिलिटी, इट नेवर लीव्स वर्क हाफ डन एंड ऑलवेज कंप्लीटेड विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। ह्यूमंस क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि हम कल काम कर लेंगे, हम कल पे डाल देते हैं, शाम पे डाल देते हैं, बाद में कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है रिलायबल होता है। आप इसे जो भी टास्क देते हो ये उसे कंप्लीट करता है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स perform calculations with the 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. तो डेटास के बेस पे ही ये हमें एक्यूरेसी देता है। अगर आपने इसको डेटा सही दिया होगा तो 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दी होगी तो आपको कभी भी बेस्ट रिजल्ट या सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मेमोरी, इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ह्यूज होती है। हम कल का कुछ काम किया हुआ भूल जाते हैं, पिछले हफ्ते का भूल जाते हैं, पिछले साल हम कहाँ गए थे, क्या किया था, लेकिन कंप्यूटर जो है इसकी ह्यूज मेमोरी की वजह से ये काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वर्सेटैलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। मल्टीटास्किंग ये कहलाता है। आप एक टाइम पे इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, और आपको अगर डॉक्यूमेंट टाइप भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। Now, do you know the speed at which a computer operates can be measured in MIPS, जिसको हम मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भी कहते हैं। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर पे। The limitations of the computer system are as follows. No feelings. A computer does not have any feelings because it is a non-living thing. ठीक है, non-living thing है इसलिए इसमें कोई feelings नहीं होती। Human dependent, a computer is a human-made machine. It cannot do anything on its own. टोटली ह्यूमन डिपेंडेंट है, मतलब ये इंसानों पे डिपेंड रहता है, खुद से ये कोई काम नहीं कर सकता, अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकता। Zero IQ. A computer does not have an IQ, intelligent quotient. By mistake, if you enter the incorrect input, it will give the wrong result. This is also called GIGO, garbage in, garbage out. So, इसका खुद का कोई IQ नहीं होता, आप जो इंस्ट्रक्शन इसे देंगे ये उसी पे ही वर्क करता है। अब आप इसको गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये उसका रिजल्ट भी आपको गलत ही देगा। So types of computers, all types of computers have CPU, keyboard and a screen to display output, but they differ in size, cost and speed. On the basis of size and shape, computers can be classified into the categories given below. So computers में आपने देखा होगा CPU भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है और एक मॉनिटर यानी कि स्क्रीन भी होती है, लेकिन इनके साइज़ और शेप के बेस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, देयर साइज रेंज फ्रॉम अ कैलकुलेटर टू अ डेस्कटॉप। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, और इनका साइज़ की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर जो होता है उससे लेकर ये डेस्कटॉप तक हो सकते हैं साइज़ में। Any computer that has a microprocessor chip as its CPU called a microcomputer. It is a single-use computer. It is also known as a personal computer (PC). Example of microcomputers are, so कोई भी कंप्यूटर जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप होती है as its CPU, उसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये आपके सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, मतलब एक टाइम पे एक ही यूज़र इसे यूज़ कर सकता है। So these are your, as you can see, desktop computer, laptop, tablet and smartphone. ये आपके एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर के। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। These are more powerful, faster, have more memory space and larger than micro computers. They are multi-user computers which can support up to 200 users at the same time. They are used in offices to connect many computers together. ये आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग होते हैं, उनका डेटास वगैरह इसी में मेंटेन किया जाता है और उनके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, फास्टर होते हैं, उनकी मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स।
Next, we have mainframe computers. These are large computers. They are faster and have greater memory space than mini computers. These are also multi-user computers capable of supporting hundreds or even thousands of users at the same time. These are mostly used for business and scientific research. मेन फ्रेम आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको रखने के लिए एक बड़ा हॉल चाहिए होता है क्योंकि काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, काफ़ी फास्टर ये माने जाते हैं, इनकी मेमोरी भी काफ़ी ग्रेटर होती है और इसमें 100 लोगों का नहीं बल्कि 1000 लोगों का डेटा आप सेव कर सकते हो और इसे एक टाइम पे मल्टी यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. Next, we have supercomputers. These are the fastest and most powerful types of computers. These are very expensive, big in size as compared to mainframe computers. Supercomputers are used for special purpose like weather forecasting, defense purpose such as to control satellites and missiles, weapons research and development. So ये आपके supercomputers हैं. देखो कितने huge होते हैं size में, काफ़ी fastest ये माने जाते हैं, powerful माने जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा expensive होते हैं. तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, डिफेंस पर्पस के लिए, सैटेलाइट एंड रिसर्च के लिए इसे यूज़ किया जाता है. No more the performance of a supercomputer is measured in terms of floating point operation per second FLOP. ये आपके जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं इनके परफॉर्मेंस को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के टर्म्स में मेजर किया जाता है. Computers are also classified into 3 types on the basis of their basic operating principle. पहला होता है आपके digital computers. They represent physical quantities with the help of digits or numbers. They are used in commercial and control systems, scoreboards in cricket matches. तो ये आपके digital computers हैं, as you can see here. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स और नंबर्स. नेक्स्ट आते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स. दे यूज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ टू शो कैलकुलेशंस. किस लिए यूज़ किया जाता है? कैलकुलेशंस को उनको यूज़ किया जाता है. दे आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर प्लेसेस. Next, we have hybrid computers. They work as both analog and digital computers. They operate by both counting and measuring. An example of hybrid computer is a modem. So ये आपका hybrid computer माना जाता है. ठीक है, ये आपका एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों के तरीके से यूज़ किया जा सकता है. इसको आप काउंटिंग के लिए और मेजरिंग के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. Now an activity is given here. Write the names of computer used for the following purposes. So पर्सनल यूज़ के लिए आप माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इसी तरीके से बाकी किन किन एक्टिविटी में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे. Computers in other machines. Different types of machines have computers inside them. Watches, mobile phones, televisions, washing machines, microwaves and video games are a few examples. इन सब के अंदर कंप्यूटर पाया जाता है या यूँ कह लो कि कंप्यूटर की तरह ही ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ठीक है, माइक्रोवेव, इसमें आप नंबर वगैरह, आप टाइम वगैरह सेट करते हो और उस टाइम पीरियड में आपका खाना गर्म हो जाता है या पक जाता है. वॉशिंग मशीन में भी आपने देखा होगा आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ती है. ठीक है, वीडियो गेम्स में भी आपने देखा होगा, आप जब वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें स्कोर्स वगैरह आते हैं, तो ये सब भी आपके कंप्यूटर की हेल्प से ही आते हैं. Memory marker, a computer works on the IPO cycle. A computer can work continuously without getting tired. A computer does not have any feelings. Microcomputers are the smallest computers. Supercomputers are the fastest and most powerful computers. Digital computers represent physical quantities with the help of digits or numbers. Hybrid computers work as both analog and digital computers. अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पे. Tech tester based on NEP 2020 and NCF 2023. So tick the correct option. The process of entering information into a computer is called input. Which of the following correctly represent the work cycle of a computer? That is input, process, output. यही आपका correct cycle को represent करने का तरीका है कंप्यूटर के. Dash computers are very small and also known as personal computers. इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है. डैश आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग. तो ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हो गए.
Write T for true and F for false statements. A computer has zero IQ. Yes, it is true. A desktop is a mainframe computer. सो आपको यहाँ पे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. स्टोरेज इज द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. Yes, it is true. Supercomputers are the most powerful and faster computers. Yes, it is true. Now fill in the blanks with the help of given hints. A computer has no dash of its own. So यहाँ पे हम लिखेंगे intelligence. Computer perform calculation with 100% accuracy. Third is the dash computers are used in cricket scoreboard, that is digital computer. Dash are used in offices to connect many computers together. These computers are mini computers. Now answer the following questions. Write any two features of computers. How does computer work? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप देंगे on the basis of the chapter. Hot's question, is the computer you are working with is a supercomputer? If not, what is it? तो आपको बताना है जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर है या नहीं. Lab based task, let's visit the computer lab. Look at the computer system in your lab. Find out which parts are used for input, process and output. तो ये आपको एक्टिविटी करनी है कंप्यूटर लैब में जाके. Now fun booster. Unscramble the jumbled letters to make meaningful words. तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें लेटर्स जो हैं आप देख पा रहे होंगे आगे पीछे, तो इनको आपको करेक्ट करके लिखना है. जैसे कि पहला है कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा है आपका प्रोसेसिंग, तीसरा है लैपटॉप एंड फोर्थ वन इज आउटपुट. इसी तरीके से आपको फिफ्थ वन बताना है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग. ठीक है, आपको यहाँ पे इनपुट देना है. इनपुट आपने दिया 10, 15 प्लस, तो आपका जो कंप्यूटर है वो उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. सो 10 + 15 और आउटपुट आएगा यहाँ पे 25. इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट करेंगे. रियल लाइफ कनेक्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो सबसे पहले आपका आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. Chit Chat Challenge. Discuss the features and limitations of computers and encourage your classmates to describe what they understand about computers. Value and life skill. How computers are useful in weather forecasting. Wonder Workshop. A smartwatch contains an embedded computer system that processes data and allows for various functionalities beyond just telling time. कलर द स्मार्ट वॉच गिवन बिलो. सो आपको यहाँ पे कुछ चिट चैट सेशन करना है, आपको वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स पे डिस्कस करना है कि हाउ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग. और साथ ही साथ आपने स्मार्ट वॉच देखी होगी जो आपको टाइम बताने के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताती हैं, तो ये आपकी स्मार्ट वॉच कहलाती है, जो ना सिर्फ आपको टाइम बताती है बल्कि अगर आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दो तो आपको इनकमिंग मैसेजेस के बारे में बताती है, कॉल्स वगैरह के बारे में बताती है. तो आपको स्मार्ट वॉच यहाँ पे दी गई है, इसको आप कलर करेंगे. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर रियली वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर and yes, do not forget to practice the exercise.